ایک لمحے کے لیے تصور کریں، ملبے تلے دبے ہزاروں لاشیں، روٹی دوائی اور خیموں کے انتظار میں کھڑے بے سہارا لوگ، اور اسی درد کے بیچ دنیا کے بڑے اخبار کی وہ ہیڈ لائن۔ شہباز شریف سے متعلق ایک مضمون شائع ہوا تھا جس میں ان پر سن 2005 کے زلزلہ متاثرین کی امداد چوری کرنے کا الزام لگایا گیا، جو الزام لگاتی ہے کہ ان زخمی ہاتھوں کے لیے آنے والا پیسہ طاقت کے ایوانوں میں غائب ہو گیا۔ الزام کسی عام شخص پر نہیں بلکہ اس نام پر ہے جو کل کو پورے ملک کی بھاگ ڈور سنبھالنے والا تھا۔ پھر اچانک برسوں بعد وہی الزام ایک عدالت کے کمرے میں دم توڑ دیتا ہے اور اخبار کو اپنے الفاظ واپس لینے پڑتے ہیں۔ مگر سوال یہ ہے کہ جب ایک جھوٹ دنیا بھر میں پھیل جائے تو کیا سچ کی واپسی اتنی ہی تیزی ہوتی ہے؟ یہ کہانی محض ایک سیاستدان پر لگنے والے الزام کی نہیں بلکہ یہ اس طاقت کی کہانی ہے جو ایک بین الاقوامی اخبار کی ہیڈ لائن میں پوشیدہ ہوتی ہے، اور اس کمزوری کی کہانی بھی ہے جو ہیڈ لائن کے پیچھے موجود ثبوتوں میں چھپی ہو سکتی ہے۔ جدید دنیا میں خبریں صرف معلومات نہیں ہوتی، وہ رائے بناتی ہیں، سیاست کا رخ موڑتی ہیں اور بعض اوقات پورے ملکوں کی ساکھ کو داؤ پر لگا دیتی ہے۔ جب کوئی الزام کسی طاقتور شخص پر لگے تو اس کا اثر صرف اس فرد تک ہی محدود نہیں رہتا بلکہ وہ پورے نظام میں، پورے معاشرے میں، یہاں تک کہ بین الاقوامی تعلقات کو بھی متاثر کرتا ہے۔ 8 اکتوبر 2005 کو آنے والا کشمیر کا زلزلہ پاکستان کی تاریخ کے المناک ترین سانحات میں شمار ہوتا ہے۔ BBC اردو، ریوٹرز اور دیگر بین الاقوامی اداروں کی رپورٹس کے مطابق اس زلزلے میں 70,000 سے زائد افراد کی جانیں گئی، لاکھوں لوگ بے گھر ہوئے اور پورے کے پورے شہر ملبے میں تبدیل ہو گئے۔ اسکول، اسپتال، سڑکیں اور گھر لمحوں میں ختم ہو گئے۔ یہ ایک ایسا انسانی المیہ تھا جس نے پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا۔ عالمی برادری نے پاکستان کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا اور مختلف ممالک نے مالی اور انسانی امداد فراہم کی۔ برطانیہ ان ممالک میں نمایاں تھا جہاں کی عوام اور حکومت نے دل کھول کر احتیاط دیے۔ ریوٹرز اور BBC کی رپورٹ کے مطابق برطانوی حکومت نے اس وقت کے وزرات اور بین الاقوامی ترقی یعنی DFID کے ذریعے پاکستان کو سینکڑوں ملین پاؤنڈز کی امداد فراہم کی۔ اس امداد کا مقصد متاثرین کو عارضی پناہ، طبی سہولیات اور بعد ازاں مستقل بحالی فراہم کرنا تھا۔ یہ رقم صرف مالی امداد نہیں تھی بلکہ یہ ایک اخلاقی ذمہ داری بھی تھی کیونکہ اس میں برطانوی ٹیکس دہندگان کا پیسہ شامل تھا جو انسانی ہمدرد کے لیے جذبے کے تحت دیا گیا تھا۔ مگر 13 سال بعد 14 جولائی 2019 کو برطانیہ کے معروف اخبار میل آن سنڈے میں شامل ہونے والے ایک رپورٹ نے اس پورے المیہ کو ایک نئی زاویے سے دنیا کے سامنے رکھ دیا۔ اس رپورٹ میں یہ دعویٰ کیا گیا تھا کہ پاکستان کے ایک سیاسی خاندان یعنی شہباز شریف اور ان کے قریبی رشتہ داروں نے 2005 کے زلزلے کے متاثرین کے لیے دی گئی برطانوی امداد میں خرد برد کی۔ BBC اردو اور ڈان کی رپورٹ کے مطابق یہ خبر سامنے آتے ہی پاکستان اور برطانیہ دونوں میں شدید بحث کا موضوع بن گئی۔ شہباز شریف جو اس وقت کے اپوزیشن لیڈر اور پنجاب کے سابق وزیر اعلیٰ تھے، اچانک عالمی میڈیا کے توجہ کا مرکز بن گئے اور ان کی سیاسی ساکھ براہ راست سوالیہ نشان بن گئی۔ یہی وہ مقام تھا جہاں یہ معاملہ محض ایک خبر نہیں رہا بلکہ ایک بین الاقوامی قانونی، سیاسی اور اخلاقی تنازع میں تبدیل ہو گیا۔ 14 جولائی 2019 کی صبح برطانیہ میں ایک عام اتوار کی صبح تھی مگر پاکستان کی سیاست کے لیے یہ دن ایک غیر معمولی ثابت ہونے والا تھا۔ برطانیہ کے معروف اخبار میل آن سنڈے کے فرنٹ پیج پر شائع ہونے والی رپورٹ نے نہ صرف پاکستان کی سیاست پر سنگین الزامات عائد کیے بلکہ ایک ایسا بیانیہ تخلیق کیا جس کے اثرات سے آنے والے برسوں تک محسوس کیے گئے۔ یہ وہ المیہ تھا جہاں ایک انسانی المیہ یعنی 2005 کے کشمیر کے زلزلے کو ایک سیاسی اور قانونی تنازع کے ساتھ جوڑ دیا گیا۔ میل آن سنڈے کی رپورٹ کی مرکزی کا دعویٰ یہ تھا کہ شہباز شریف جو اس وقت پاکستان میں اپوزیشن لیڈر اور پنجاب کے سابق وزیر اعلیٰ تھے نے اپنی دور حکومت میں برطانیہ کی حکومت کی جانب سے دی گئی امدادی رقم کو غلط طریقے سے استعمال کیا گیا۔ رپورٹ کے مطابق یہ امداد برطانیہ کے وزارت برائے بین الاقوامی ترقی DFID نے 2005 کے زلزلے کے بعد متاثرہ علاقوں کی بحالی کے لیے فراہم کی گئی تھی، مگر الزام یہ لگایا گیا کہ اس رقم کا ایک حصہ مبینہ طور پر شہباز شریف کے خاندان کے افراد کے ذریعے منی لانڈرنگ کے راستے سے برطانیہ منتقل کیا گیا۔ یہ الزام اپنی شدت پہ اس لیے غیر معمولی تھا کیونکہ یہ محض مالی بدعنوانی کا الزام نہیں تھا۔ ڈان اور BBC اردو کی رپورٹس کے مطابق یہ الزام ایک ایسے وقت اور ایک ایسے تناظر سے جڑا ہوا تھا جس میں عالمی ہمدردی، انسانی دکھ
और बरतानवी आवाम के टैक्स का पैसा शामिल था। जल्जले के बाद दी गई इमदाद को आमतौर पर एक मुकद्दस अमानत समझा जाता है और इसीलिए इसमें खुर्द बुर्द का इल्जाम पाकिस्तानी सियासत में सबसे ज्यादा नफरत अंगेज इल्जामात में शुमार होता है। मेल ऑन संडे ने अपनी रिपोर्ट में ये दावा किया कि पाकिस्तान के कौमी इस्तिसाब ब्यूरो नैब की तहकीकात से मुंसलिक बाज़ दस्तावेजात और शवाहिद इस बात की निशानदेही करते हैं कि जिलजिला बहाली के मंसूबे में शामिल कुछ अफराद ने सियासी असर शौक के तहत फंड का गलत इस्तेमाल किया। रिपोर्ट में ये तासुर दिया गया कि ये महज इंतजामी कोताही नहीं थी बल्कि एक मुनज़्ज़म स्कीम थी जिसमें शहबाज शरीफ के खानदान के करीबी रिश्तेदारों के नाम भी लिए गए। यहाँ ये बात अहम है कि रिपोर्ट में इस्तेमाल होने वाली जबान मोहतात मगर असर अंगेज थी। रियूटर्स के मुताबिक डेली मेल की सहाफत का एक मारूफ असलूब ये है कि वो बराह रास्त फैसले सुनाने के बजाय ऐसे जुमले इस्तेमाल करता है जो कारी खुद नतीजा अंगेज करने पर मजबूर करेंगे। अगर फरवरी 2021 में बरतानवी अदालत ने बाद अज़ां ये तय किया गया कि इस रिपोर्ट को पढ़ने वाला एक आम शख्स भी यही समझेगा कि शहबाज शरीफ वाकई जिलजिला मुतासरीन की इमदाद को चोरी करने के मुर्तकिब हुए। ये बात उस वक्त वाज़ेह नहीं थी मगर बयानिया वही तश्कील पा चुका था। रिपोर्ट में बरमंगा में मुकीम एक पाकिस्तानी निसाब शख्स का जिक्र किया गया जिसे मुबैना तौर पर रकम की तरसील में किरदार अदा करने वाला बताया गया। डॉन और द न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक ऐसे हवालात पाकिस्तान की कारीन के लिए खास तौर पर मानूस थे क्योंकि पाकिस्तान के माजी में भी बैरूनी मुल्क की तरसीलात और मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जामात सियासी तनाजात का हिस्सा बनते रहते हैं। इस तरह रिपोर्ट ने पहले ही मौजूद अवामी शकूक को मजीद तकवीयत दी। पाकिस्तान में ये खबर आते ही एक सियासी तूफान बर्पा हो गया। लिहाजा डेली मेल की ये स्टोरी ना आपको किसी तरह भी इसके पीछे आप छुप के ये कह सकते हैं कि ये हुकूमती एजेंडा है। डॉन और बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने उस वक्त रिपोर्ट को फौरी तौर पर एक सियासी हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया। हुकूमती वज़रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में मेल ऑन संडे की रिपोर्ट के तराशे दिखाए। ये वो हकायक ये स्टोरी बयान कर रही है जो डेली मेल यूके में छपी है और ये दावा किया कि ये रिपोर्ट पाकिस्तान में जारी इस्तिसाबी अमल की बैनुल अक़वामी तस्दीक है और ये कहा गया कि शरीफ खानदान के खिलाफ लगाए गए इल्जामात अब आलमी सतह पर तस्लीम किए जा चुके हैं। इसके बरक्स मुस्लिम लीग नून और शहबाज शरीफ ने इस रिपोर्ट को एक मुनज़्ज़िम और सियासी साजिश करार दिया। डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक पार्टी की क़यादत का मौक़िफ़ ये था कि ये रिपोर्ट झूठ और आधे सच और नामालूम ज़राए से फराहम की गई मालूमात पर मुबनी है। शहबाज शरीफ ने वाज़ेह तौर पर यह कहा कि उन्होंने कभी DFID की किसी रकम का गलत इस्तेमाल नहीं किया और ये कि अगर ये इल्जामात में जरा सी भी हकीकत होती तो बरतानी हुकूमत खुद कार्रवाई करती। यही वो मकाम था जहाँ कहानी महज एक बुनियादी तजाद से सामने आया। रियूटर्स और BBC की रिपोर्ट के मुताबिक DFID ने एक बाज़ाब्ता बयान जारी किया जिसमें कहा गया कि उनके ऑडिट और मॉनिटरिंग सिस्टम्स निहायत सख्त है और इन्हें जिलजिला इमदाद का गलत इस्तेमाल किसी माली बेज़ाब्तगी का कोई सबूत नहीं मिला। ये बयान डेली मेल की रिपोर्ट के बुनियादी मफरूजे के बिल्कुल बरक्स था। एक तरफ अखबार दावा कर रहा था कि बरतानवी टैक्स दहनगान को लूटा गया और दूसरी तरफ वही बरतानवी हुकूमत कह रही थी कि उन्हें किसी नुकसान का इल्म नहीं है। ये तजाद महज एक तकनीकी नुक्ता नहीं था बल्कि इसने इस पूरी रिपोर्ट की बुनियाद को एक सवालिया निशान बना दिया। BBC उर्दू के मुताबिक अगर DFID खुद किसी बेज़ाब्तगी की तस्दीक नहीं कर रहा था तो फिर इल्जामात का इन्हिसार किन शवाहिद पर था? क्या नैब की मुबैना लीक शुदा दस्तावेजात जो पाकिस्तान की सियासत के शदीद दबाव में सामने आती रही हैं एक बरतानवी अदालत में काबिल कबूल समझी जा सकती थी? इस मरहले में ये मामला मीडिया ट्रायल की शक्ल अख्तियार कर चुका था। पाकिस्तान में आवामी राय बड़ी हद तक खबर के पहले तासुर में कायम हो चुकी थी। डॉन की एक रिपोर्ट के मुताबिक बहुत से लोगों के लिए ये फर्क करना बहुत मुश्किल हो गया था कि ये इल्जाम आखिर कहाँ खत्म होता है और साबित शुदा हकीकत कहाँ से शुरू होती है। यही मीडिया की ताकत है। मेल ऑन संडे की रिपोर्ट ने शहबाज शरीफ को एक ऐसे किरदार में पेश किया जिसे अपनी सफाई देने का मौक़िफ़ भी महदूद था, क्योंकि जब एक इल्जाम इंसानी अलमियत से जुड़ा हो तो इसकी तरदीद अक्सर बेहिसी के बराबर समझी जाती है। यही वजह थी कि इस खबर ने न सिर्फ सियासी बहस को जन्म दिया बल्कि इखलाकी जज्बात को भी भड़का दिया। यही वो पस मंजर था जिसमें शहबाज शरीफ ने वो फैसला किया जो इस कहानी को एक नए मरहले में ले जाने वाला था। उन्होंने ये मामला महज सियासी बयानात और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस तक महदूद रखने के बजाय इसे बरतानवी अदालत के कटहरे में ले जाने का फैसला किया। जब शहबाज शरीफ ने मेल ऑन संडे के खिलाफ लंदन की हाई कोर्ट में हत्या की इज्जत का मुकदमा दायर किया
तो ये महज एक कानूनी कदम नहीं था बल्कि एक गैर मामूली सियासी और इखलाकी जुआ था। डॉन और BBC उर्दू के मुताबिक पाकिस्तान की सियासत में बहुत ही कम ऐसे वाकयात मिलते हैं जहाँ किसी रहनुमा ने बैनुल अक़वामी मीडिया के इदारे को बराह रास्त उसके अपने ही कानूनी निज़ाम में चैलेंज किया हो। ये फैसला इसलिए भी एक गैर मामूली था क्योंकि बरतानिया का लेबल लॉ दुनिया के सख्त तरीन कवानीन में शुमार होता है और ऐसे मुकदमात न सिर्फ महंगे बल्कि इस्तिसाबी तौर पर भी तबाहकुन समझे जाते हैं। बरतानवी कानून हत्या के इज्जत की बुनियाद एक सादा मगर ताकतवर असूल पर है। US President Donald Trump has filed a defamation suit against Britain's BBC over its editing of a speech he made in 2021. Trump is seeking $5 billion in damages on each of 2 counts over the BBC's documentary on his role in... अगर आप इल्जाम लगाते हैं तो इसकी सच्चाई साबित करना आपकी जिम्मेदारी है। रियूटर्स और BBC की कानूनी तज्जियात की रिपोर्ट के मुताबिक यही वो असूल है जो इस कानून को दुनिया भर के सहाफ़ी के लिए खौफ और एहतियात की अलामत बनाता है। अमेरिका जैसे ममालिक में आज़ादी इज़हार को ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ हासिल है मगर बरतानिया में किसी फर्द की साख को रियासती सतह पर एक कीमती हक समझा जाता है। 2022 के वक्त तक ये बात वाज़ेह हो चुकी थी कि ये केस अब महज एक कानूनी कार्रवाई नहीं रहा। डेली मेल के लिए ये एक वजूदी मसला बनता जा रहा था। डॉन, रियूटर्स और BBC की रिपोर्ट के मुताबिक लंदन हाई कोर्ट में मुकम्मल ट्रायल अक्टूबर 2023 के लिए मुकर्रर था और इस ट्रायल में डेली मेल को सब कुछ करना पड़ता जो किसी भी बड़े मीडिया इदारे के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक समझा जाता है। अपनी ज़राए और अपनी रिपोर्टर और अपनी मालूमात की बुनियाद को खुलेआम अदालत के सामने रखना। बरतानवी अदालत में मुकम्मल ट्रायल का मतलब सिर्फ दलाल नहीं होता बल्कि जरा दस्तावेजात की तस्दीक और गवाहों की साख का इम्तिहान भी होता है। रियूटर्स के मुताबिक अगर डेली मेल ट्रायल में जाता तो इसे ये साबित करना पड़ता कि वाकई DFID की इमदाद खुर्द हुई है और ये रकम शहबाज शरीफ या उनके खानदान तक पहुंची और ये सब कुछ महज एक सियासी बयानिया नहीं बल्कि काबिल तस्दीक हकीकत थी। ये बोझ गैर मामूली हद तक भारी था। यहाँ एक और पहलू भी सामने आता है जिस पर BBC और डॉन ने तफसीली तज्जिया शाया किए। डेली मेल की पूरी कहानी की बुनियाद नैब की मुबैना तहकीकात और लीक शुदा मवाद पर थी, लेकिन अदालत में ये सवाल बार बार उठ रहा था नैब ने कभी शहबाज शरीफ पर बरतानवी इमदाद की चोरी करने का बाकायदा इल्जाम आयद ही नहीं किया। अब सवाल ये पैदा होता है अगर किसी इदारे ने इल्जाम ही नहीं लगाया तो इस इल्जाम पर मुबनी खबर को कैसे सच साबित किया जा सकता है। इसी दौरान DFID का मौकफ डेली मेल के लिए एक खामोश मगर मोहलक मसला बना रहा। रियूटर्स के मुताबिक बरतानवी हुकूमत के इस इदारे ने ये वाज़ेह किया कि उनके ऑडिट सिस्टम्स में ऐसे बेज़ाब्तगी के शवाहिद नहीं मिले। इसका मतलब ये था कि अदालत में एक अजीब सूरत हाल पैदा हो सकती थी। एक अखबार ये दावा कर रहा था कि बरतानवी अवाम का पैसा चोरी हुआ जबकि खुद बरतानवी हुकूमत इस दावे को मुस्तरद कर रही थी। कानूनी माहिरीन जिनके हवाले BBC और द गार्डियन ने दिए इस बात पर मुत्तफिक थे अगर डेली मेल ये केस हार जाता तो उसे न सिर्फ भारी हर्जाना अदा करना पड़ता बल्कि उसकी साख्त को भी नुकसान पहुंच सकता था। ये सिर्फ एक सियासतदान से माफी मांगने का मामला नहीं था बल्कि बैनुल अक़वामी सतह पर सहाफ़त की साख दाव पर लग सकती थी। यही वो पस मंजर था जिसमें दिसंबर के आगाज में ही खामोशी से तस्फिये की बातचीत शुरू हुई। अदालत के रिकॉर्ड्स और डॉन की रिपोर्टिंग के मुताबिक ये मुज़ाकरात इंतहाई अज़दारी में हुए और दोनों फरकीन इस बात से आगाह थे कि अब ये केस सिर्फ हार और जीत का नहीं बल्कि कम नुकसान करने का मरहला है। आखिरकार 8 दिसंबर 2022 को ये खामोशी टूट गई। डेली मेल ने अदालत से बाहर तस्फिया करने पर रजामंदी जाहिर कर दी। ये खबर पाकिस्तान और बरतानिया दोनों में एक धमाके की तरह फैली। BBC उर्दू के मुताबिक ये वो लम्हा था जब 3 साल पर मुहित एक शदीद तनाज़ा अचानक एक गैर मुतवक्का अंजाम तक पहुंच गया। तफसीर के तहत डेली मेल ने वो सब कुछ किया जो वो 3 साल तक करने से इनकार करता रहा। सबसे पहले मुतनाज़ा रिपोर्ट को अपनी वेबसाइट से मुकम्मल तौर पर ख़त्म किया। ये महज एक तकनीकी इक़दाम नहीं था बल्कि एक अलामती एतराफ़ था कि ये रिपोर्ट अब अखबार की दफ़ा के काबिल नहीं रही। इसके बाद एक बाज़ाब्ता माफ़ी शाये की गई जिसके अल्फाज गैर मामूली हद तक वाज़ेह और सख्त थे। BBC और डॉन के मुताबिक डेली मेल ने अपनी माफ़ी में ये तस्लीम किया कि शहबाज शरीफ पर कभी भी नैब की जानिब से बरतानवी इमदाद की गलत इस्तेमाल का इल्जाम आयद नहीं किया गया था। ये जुमला कानूनी तौर पर पूरे उस केस की बुनियाद को खत्म करने के बराबर था क्योंकि जिस इल्जाम पर रिपोर्ट खड़ी थी वो इल्जाम सरे से मौजूद ही नहीं था। माफी के साथ साथ शहबाज शरीफ को एक हर्जाना भी अदा किया गया अगरचे ये रकम खुफिया रखा गया, लेकिन रियूटर्स के मुताबिक बरतानवी लेबर लॉ में इस नौयत के केसेस में दी जाने वाली रकम अमूमन बहुत बड़ी होती है, खास तौर पर जब माफी, रिट्रैक्शन और अखराजात तीनों शामिल हो।
कानूनी माहिरीन ने इस तफसीये को डेली मेल की मुकम्मल पसपाई करार दिया। पाकिस्तान में इस तफसीये के बाद सियासी फिजा में शदीद हलचल मच गई। डॉन और द न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक मुस्लिम लीग नून ने अपनी इखला की सियासी और कानूनी फतह करार दिया। पार्टी रहनुमाओं ने कहा कि यह फैसला उस बयानिए को दफन कर देता है जो बरसों से शरीफ खानदान के खिलाफ कायम किया गया था। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ और उसके हामियों ने यह मौक़िफ़ अख्तियार किया कि माफी महदूद नोयत की थी और इससे तमाम इल्जामात खत्म नहीं होते। BBC उर्दू के मुताबिक इस बहस ने एक बार फिर ये वाज़े कर दिया कि अदालत और सियासत दो मुख्तलिफ दुनियाएं हैं। अदालत में फैसला अल्फाज और सबूत की बुनियाद पर होता है, जबकि सियासत में तासुर और बयानिया ज्यादा अहम होता है। डेली मेल ने अदालत में हथियार डाल दिए, मगर अवामी बहस में कहानी मुकम्मल तौर पर खत्म नहीं हुई। ये कहानी किसी एक अखबार, किसी एक सियासतदान की नहीं, ये कहानी उस ताकत की है जो एक बैनुल अक़वामी हेडलाइन के पास होती है, और उस कमजोरी की भी जो इस ताकत के पीछे छुपे शवाद में भी हो सकती है। डेली मेल की रिपोर्ट ने 3 साल तक पाकिस्तान की सियासत, मीडिया और अवामी राय को मुतासर रखा। इस रिपोर्ट ने एक सियासी बयानी तश्कील दिया, इंतखाबात के मुबाइस को सिमत दी और एक फर्द की साख को आलमी सतह पर सवालिया निशान बना दिया। लेकिन डॉन, BBC और रियूटर्स के मुताबिक जब यही इल्जाम अदालत के कटहरे में पहुंचा तो इसे वो सहारा ना मिल सका जो मीडिया की दुनिया में काफी समझा जाता है। अदालत ने सवाल किया, सबूत मांगा और बिल आखिर ये तय पाया कि इल्जाम साबित न हो सका। शहबाज शरीफ ने इस केस के जरिए अपनी साख कानूनी तौर पर बहाल कर लिया, मगर सवाल अब भी बाकी है। एक बार छपने वाली हेडलाइन कभी भी मुकम्मल तौर पर अवाम के जहन से मिट नहीं सकती। ये केस हमें ये सबक देता है कि तहकीकाती सहाफत जितनी जरूरी है उतनी ही जिम्मेदारी भी होनी चाहिए, खास तौर पर जब इल्जाम इंसानी अलमियों और अवामी हमदर्दी से जुड़ी इमदाद से मुतल्लिक हों। आखिर में ये कहानी हमें ये याद दिलाती है कि कानून में सच को वक्त लगता है, मगर जब वो बोलता है तो अल्फाज की गूंज बहुत दूर तक जाती है, और यही शायद इस पूरे मुकदमे की असली विरासत है। तो दोस्तों, इस तमाम वीडियो से आपको क्या लगता है कि क्या सच था, क्या गलत था? कमेंट में हमें अपनी राय जरूर बताएं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ गया तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई हकीकत के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज।